Parliamentary committees that establish the study deal with the various matters that cannot be directly handled by legislation. They also monitor the functioning and executive branch. It is the executive branch. Parliamentary committees are the standing and the ad hoc committee. The former elected appointed by the periodically and they cannot work continuous basis. The latter created on the ad hoc basis, that is need arise, they resolve after complete this. So standing committee is committee consisting of the member of parliament. It is permanent and regular committee that constitute for time to time according providing the act of parliament. The role or rules of procedure, conduct business and the work done by the Indian Parliament is not only voluminous but also complex. Hence, the good deal of the work is carried out in the Parliamentary Committee, Financial Department and other. Financial Standing Committee, Public Account Committee that examine the various expenditure reports and accounts. 1921 that ruling party use the appointment of speaker as a chairperson. Speaker as a chairman in 1921 was established under the provision of Government of India Act, and since that, however, the first time the member of the opposition in Lok Sabha was appointed as a chairman of the committee by the speaker, and practice continues still. Estimate committee, the committee on estimate continues for the 1950. Committee is consisting of the 30 members and elected every year by the Lok Sabha for the amongst member. Public Undertaking Committee is analyzing the accounts of the state of PSU. It check the disinvestment policy too. So now I am going to discuss all committees. First is the Public Account Committee and इसका चेयरपर्सन अभी है KC वेणुगोपाल. 22 members, 15 from Lok Sabha, 7 from Rajya Sabha. Tenure is 1 year and elected from the Lok Sabha and Rajya Sabha. Subcommittee non-compliance, timely submission of the action and auditing also and expenditure. So direct and indirect taxes से related हो गया. And one is implementing the पैक, मतलब जितनी भी पैक की रिकमेंडेशन है उसको ये पब्लिक अकाउंट कमेटी डालेगी एंड रेलवे की भी. सो ये एक तो पैक की रिपोर्ट देखती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पैक की ही रिपोर्ट है ये, कैक को देती है ये. दूसरा यहाँ पे रेलवे के मैटर्स भी देखे जाते हैं. एस्टिमेट कमेटी यहाँ पे है संजय जायसवाल. इसके 30 मेंबर्स हैं, टोटल 1 ईयर का कार्यकाल है एंड इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा MP. ये ओनली लोकसभा से आते हैं. सिचुएशन ऑफ द कंट्री फॉर द मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर और फार्मर्स रिलेटेड एंड एजुकेशन विद द स्पेशल रेफरेंस टू द डेवलपमेंट रिगार्डिंग एजुकेशन. तो एग्रीकल्चर प्लस एजुकेशन ये दो मैटर. पब्लिक अंडरटेकिंग इसमें है बैजयंत पांडा. बैजयंत पांडा अभी देख रहे हैं इसको, बैजयंत पांडा. और एस्टिमेट को संजय जायसवाल और पब्लिक अकाउंट को KC वेणुगोपाल. तो यहाँ पे 22 मेंबर हैं, 1 ईयर का है, इलेक्टेड बाय लोकसभा राज्यसभा. करंटली इसमें कोई वर्क नहीं चल रहा. नो डिपार्टमेंट रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमेटी है 1989 में 8th लोकसभा ने रूल बनाए थे. कंसिडर एंड अप्रूवल ऑफ प्रपोजल दैट द सब्जेक्ट एग्रीकल्चर एनवायरमेंट एंड साइंस and the committee were finally approved by the house of the committee were formally constituted in the 1989. रिपोर्ट अंडर रूल 10th लोकसभा को दिया गया. देन 93 में इन्होंने 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज़ को बनाया. These replaced by the earlier subjects and now 1989 में 17 committee formally constituted, and after experiencing the working of this system, the system was restructured where the number of increased 24. 13 Lok Sabha each these standing committee used to consist the 45 member, 30 from the speaker and the 15 from this was the chairman of Rajya Sabha. And this was restructuring this 2004 में इसको restructure किया गया. And there was a 31 member that was 21 plus 10. 24 डिपार्टमेंट कमिटीज़ थी जिसमें कि 31 जो थी these committees, 21 from लोकसभा, 10 from राज्यसभा
एंड स्पीकर जो था, नॉमिनेशन कौन करता है, स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। द टर्म जो था वो 1 ईयर एंड दीज कमिटी आर सर्विस बाय द लोकसभा सेक्रेटरी। सो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले है कमिटी ऑन द एग्रीकल्चर, दैट वाज एमपी चरणजीत सिंह है। स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयरमैन होते हैं 1 ईयर के लिए। चेयरमैन केमिकल फर्टिलाइजर के लिए कीर्ति आज़ाद हैं, स्पीकर 1 ईयर के लिए। कमिटी ऑन कोल के लिए हैं अनुराग ठाकुर, लोकसभा 1 ईयर। कॉमर्स के लिए है डोला सेन एंड राज्यसभा 1 ईयर। डिफेंस के लिए स्पीकर लोकसभा राधा मोहन। एनर्जी के लिए है श्रीरंग। इसी करके सारी ही कमिटीज़ बनाई गई हैं। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कमिटीज़ तो है ही इम्पॉर्टेंट, सारी 1 ईयर के लिए बनाई गई हैं एंड प्रॉपरली चेयरमैन ऑफ स्पीकर के द्वारा बनाई गई हैं। बट यहाँ कुछ और कमिटीज़ हैं, जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इसके ओम बिरला हैं, 15 मेंबर होते हैं, नॉट फिक्स्ड मतलब टेन्योर बट नॉमिनेटेड। कमिटी ऑन प्रिविलेजेस हैं सुनील कुमार सिंह, 15 मेंबर नॉमिनेटेड। कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ द सिटिंग, दैट वाज 15 मेंबर नॉमिनेटेड। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन नॉमिनेटेड 1 ईयर एंड हीना विजय कुमार है जो कि एम्पावरमेंट। कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस राजेंद्र अग्रवाल, 15 मेंबर नॉमिनेटेड। कमिटी ऑन पेपर गिरीश चंद्र नॉमिनेटेड। ऐसे करके ये कमिटीज़ बनाई गई हैं जो कि इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है। रूल्स कमेटी ओम बिरला है। लाइब्रेरी कमेटी नामा नागेश्वरा राव है। जॉइंट सैलरी में है रीता रघु ना जोशी। जॉइंट कमेटी ऑन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है एटेना। एंड कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो कि हैं फगाना सिंह। अब कुछ कमिटीज़ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेटी ऑन एथिक्स जिसमें है एल के आडवाणी, 1 साल के लिए 15 मेंबर। कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट एंड पार्लियामेंट में AP जितेंद्र रेड्डी, 15 मेंबर 1 साल। कमेटी ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ द स्टेचू के लिए सुमित्रा महाजन हैं और 12 मेंबर है। कमेटी ऑन लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए थाम्बी दुरई है जो कि 24 मेंबर है। कमेटी ऑन प्रोविजन ऑफ कंप्यूटर MP कुमार है, 10 मेंबर। कमेटी ऑन द मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज सुमित्रा महाजन है, 10 मेंबर है और 1 लोकसभा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1। स्क्रूटनी ऑफ पार्लियामेंट के लिए सुमित्रा महाजन 1 साल। कन्वेंशन कमेटी बारतूरी 1 साल। कन्वेंशन वायलेशन ऑफ द प्रोटोकॉल एंड इंक्वायरी ऑफ द कंडक्ट, ये सारी कमिटीज़ है। फिर ये जो कमिटीज़ है दैट इज़ पूछ भी ले तो ठीक है, नहीं भी पूछे तो ठीक है, बट कुछ और हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है शाहनवाज की कमेटी जो कि 1956 में आई थी, 3 मेंबर कमेटी फॉर द नेहरू गवर्नमेंट और सुभाष चंद्र बोस। द कमेटी वॉज लेड द शाहनवाज खान एंड यहाँ पे सुभाष बोस। द कमेटी केम इन टू द कंक्लूजन ऑफ बोस वॉज किल्ड एंड बट सुरेश चंद्र बोस डिड नॉट एग्री विद द रिपोर्ट। ओके। बलवंत राय मेहता 1957 में एग्जामिन द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अशोक मेहता कमेटी 77 में और सबमिट की थी रिपोर्ट 78 में। आई तो 77 में है, इसकी रिपोर्ट 78 में सबमिट हुई है, जस्ट 1 ईयर लेटर। सो द जनता गवर्नमेंट अपॉइंटेड द कमिटी एंड दैट वाज कमिटी सबमिटेड द रिपोर्ट। 132 रिकमेंडेशन थी और पंचायती राज से रिलेटेड। JVP कमेटी दर कमीशन रिपोर्ट। नरसिंहा राव कमेटी 1998 में आई थी, वेरियस बैंकिंग सेक्टर। सच्चर कमेटी 2005 में आई, 2006 में इसको इम्प्लीमेंट किया। एग्जामिन द सोशल इकोनॉमिकल एजुकेशन कंडीशन ऑफ मुस्लिम। सच्चर कमेटी फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। श्री कृष्णा कमेटी 2010 और 2010 में द कमेटी वॉज फॉर्म टू लुक इनटू द डिमांड फॉर सेपरेट स्टेटहुड ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। नरेश चंद्र कमेटी डिफेंस रिफॉर्म से रिलेटेड 2012 में एंड स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 to make the recommendation about the fundamental duties and the committee recommendation included for separate chapter of duty, and it states that the citizen should become conscious that addition to the enjoyment of rights they also have a certain duties. So Swarna Singh committee, that was its recommendation about the fundamental duty. So duties से related थी Swarna Singh committee. So this was the committees. Now Parliament has a standing committee also.
एंड कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इट इज़ द परमानेंट होती है, रेगुलर होती है. सो इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट ओनली वॉल्यूटिमस बट ऑल्सो द कॉम्प्लेक्स नेचर, ग्रेट डील विद द वर्क ऑफ कैरिड ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी. तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर होते हैं. एंड कमिटी स्ट्रक्चर विद द फ्यू एक्सेप्शंस लाइक अपॉइंटमेंट्स, टर्म एंड फंक्शंस, प्रोसीजर्स. These standing committee are elected by the every year periodically chairman of राज्यसभा. तो यहाँ पे एक चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के और द स्पीकर ऑफ लोकसभा रिजल्ट ऑफ दिस. सो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जिसमें स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एवरी ईयर फॉर द फ्रिक्वेंटली continuous basis. Ad hoc committee are temporarily and they created the specific task for the completed. तो स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो कंटिन्यूस होती है, जबकि एडॉक कमेटी जो होती है दैट इज़ टेम्पररी होती है, टेम्पोररी एंड स्पेसिफिक टास्क के लिए. ठीक है. सो यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी में राज्यसभा, लोकसभा एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड भी होती है दोनों की. ठीक है. इनके फंक्शंस क्या होते हैं? इंक्वायर करना, स्क्रूटनाइज करना, डे टू डे बिजनेस को भी देखना, एंड हाउस कीपिंग, पासिंग ए बिल, डिपार्टमेंट वाइज कमेटी स्क्रूटनी ऑफ द बजट, एंड बजट को भी ये स्क्रूटनी करती हैं. जबकि इंडियन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हमने देखी थी. ये हमने देखी ली थी. ठीक है. अब कमीशंस पे चलते हैं. अब कौन से हैं लिस्ट ऑफ इंडियन कमीशंस. ये कमीशंस भी पूछ लेते हैं कई बार कि कमीशंस कौन कौन से हैं हमारे यहाँ. ठीक है. तो ये जो है जैसे कि फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये 1948 में आया था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एंड रिप्लेस द इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन 1948 एंड प्लान इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस मेजर्स ऑफ द एटॉमिक एनर्जी. दूसरा है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस, ये 65 में आया था, स्टेबलाइजिंग द प्राइसेस एंड रियल इनकम ऑफ द फार्मर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 93 में आया था, कंसिडर इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ द क्लासेस. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. नेशनल कमीशन फॉर कैटल 2002 में, इन्वॉल्विंग द कंडीशन ऑफ द कैटल, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. कंपटीशन कमीशन 2003 में आया है. अब ये ध्यान रखना है, कंपटीशन कमीशन कब आया? 2003 में. एनफोर्स द कंपटीशन एक्ट जो था ये 2002 में आया था, लेकिन कमीशन 2003 में. प्रिवेंट एक्टिविटी दैट हैव एडवर्स इफेक्ट. नेशनल स्टैटिकल कमीशन 2005 में आया था, रिड्यूस करना है क्या स्टैटिकल की प्रॉब्लम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल के अंतर्गत, एंड स्पेशल एम्फेसिस ऑन द इंश्योरिंग द कलेक्शन एंड अनबायस्ड डाटा को कम करना. टेलीकॉम कमीशन इन 1989 एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी को कैसे फॉर्मुलेट करना है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन. इलेक्शन कमीशन 1950 एंड इट वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, autonomous body, conduct the election of the office president of India and state parliament के and assemblies के. चीफ लेबर कमीशन 1945 में आया था, प्रिवेंशन, सेटलमेंट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ द लेबर रिलेटेड रूल्स. ये भी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है. फिर है प्लानिंग कमीशन 1950 में, फॉर्मुलेट करना 5 ईयर प्लान. लॉ कमीशन 1955 में आया था, रिफॉर्म करना लॉ को, जस्टिस को, प्रमोट करना गुड गवर्नेंस. फाइनेंस कमीशन 1951 अगेन. तो ऊपर हमने पढ़ा था इलेक्शन कमीशन जो कि 50 में है, जबकि फाइनेंस कमीशन एक साल बाद आया है इलेक्शन कमीशन के. तो इट इज़ 1951. एंड एडजुडिकेटिंग शेयरिंग रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993, ये ऑटोनोमस स्टेटूटरी है. ये कैसा है? स्टेटूटरी है. फिर है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 में, कोऑर्डिनेटिंग, डिटरमाइनिंग मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टैंडर्ड्स है. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आता है, यूजीसी. तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. विजिलेंस 1964 में, गवर्नमेंट के करप्शन के मैटर्स. नॉलेज कमीशन 2005 में. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 92, प्रोटेक्ट करना वुमेन्स को. शेड्यूल टाइप्स 2004 में आया था, वेलफेयर करना. कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर 2004 में, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. सेंसस कमीशन 1872, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. सेंसस कहाँ से आया था? दैट वाज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. दैट वाज 1872. सेंट्रल फॉरेस्ट्री 1965 में आया था. सेंट्रल वाटर कमीशन 1945 में, वाटर रिसोर्स से रिलेटेड मैटर देखना.
इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन 71, कमीशन ऑन एडिशनल एनर्जी 1981, राष्ट्रीय बर्थ आयोग, नेशनल फूड कमीशन 1976, वाटर सोर्स रूरल फॉर गंगा रिजुवनेशन, इंडो बांग्लादेश जॉइंट रिवर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, दैट वाज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, इट्स 1957, स्पेस कमीशन 1962, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 76, नेशनल जुडिशियल खादी वाला कब आया था? 57 में, ये भी पूछा गया है कई बार। एंड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए ट्रांसफरिंग ऑफ जजेस से रिलेटेड यूपीएससी 1926 में आ गया था। एंड इट्स कंडक्ट द एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट एंड डेपुटेशन, फ्रेमिंग अमेंडमेंट्स, रिक्रूटमेंट रूल्स एंड डिसिप्लिनरी केसेस रिलेटिंग टू द civil service. Pay commission, it was pay commission is for the recommendation of the salaries related matter. National Committee Minority 92 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 2005, एयर क्वालिटी के रिलेटेड 2021 में आया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत। दिल्ली से रिलेटेड मैटर देखना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो आया था 55 में फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। कोठारी कमीशन 1964 फॉर्मुलेट करना गाइडलाइन फॉर एजुकेशन एंड टू एडवाइस करना गवर्नमेंट को। कपूर कमीशन 1966 महात्मा गांधी से रिलेटेड असैसिनेशन के मैटर। खोसला कमीशन 1970 में आया था, डेथ ऑफ द सुभाष चंद्र बोस। मंडल कमीशन 1979 फॉर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन वगैरह देना और ये सारा कुछ मैटर ये आया था 1979 को मंडल। एंड सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट से रिलेटेड मैटर देखना। मुखर्जी कमीशन 2005 में, डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। नानावटी कमीशन जो है एनडीसी क्रिएट हुए थे 2000 में। नरेंद्र कमीशन दैट इज स्टडी द रिपोर्ट्स ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस 2000 में। नेशनल कमीशन फॉर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2000 में ही आया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो इट इज़ सजेस्टिंग द इलेक्ट्रोल लॉज एंड रिलेटेड मैटर। नानावटी मेहता कमीशन 2002 में, इसमें गोधरा कांड वाला। एंड कमीशन फॉर रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी 2004 में, लिंग्विस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटी से रिलेटेड मैटर। लीहरान कमीशन दैट वाज टू इन्वेस्टिगेट द बाबरी मस्जिद 1992 में, लिब्रहान कमीशन। एंड शाह कमीशन 1977 में आया था, इंडियन इमरजेंसी से रिलेटेड सारे मैटर देखने के लिए, ठीक है। और कमिटी ऑन रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दैट वाज 2004 में आया था, ठीक है। सो स्टैंडिंग कमेटी देख ली, लिस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी और कुछ कमीशंस भी देख लिए हमने।